Welcome my dear students to the social science lecture. Today we will learn some more scholars who studied the history in Europe during the 18th century. Next scholar is a Voltaire. First, in the last lecture we have studied the René Descartes. Now second one we will study the Voltaire. Again 1694 1778. So now Voltaire original name was Francois Marie Arouet. Underline the word. Voltaire's original name was Francois Marie Arouet. He was a French scholar, or he was a French historian. He opined that along with the objective truth and chronology of historical event, considering the social tradition, trade, economy, agriculture, etc. were equally important. Why? Because before the Voltaire, the many historians were only writing about the historical chronological dates and some important traditions, but they are not even considering the events like social tradition, trade activities, agriculture activities. So Voltaire gave a focus on such topics like social traditions, customs, trade, economy, agriculture, etc. were equally important in their historiography, in his historiography. So it gave rise to the thought that understanding all the aspects of human life is important for history. So he gave importance that not only few part, but understand all part of human life. Not only few parts, but all the parts of human life you have to understand while writing the history. So this was an important aspects which was studied by Voltaire. Due to this, it is said that Voltaire was a founder of modern historiography. Voltaire was said as a father of modern historiography. You have to underline these two statements. First, it gave rise to the thought that understanding all the aspects of human life is important for history writing. And second statement is thus it is called as a Voltaire was a founder of modern historiography. So while writing an essay or while writing in short notes, not essay, while writing in short note or in a brief, you have to remember 4 points about the Voltaire. First, Voltaire original name was Francois Marie Arouet. And second, that he was a French scholar. Third one, he gave importance to the social customs, traditions, trade, economy, agriculture in writing of historiography. And it gave rise to the thought that important understanding of all the aspects of human life is important in history writing. And last, it is said that Voltaire was a founder of modern historiography. So in this way, you have to understand the event or understand the particular statement, and then you have to remember those things. No, don't do the ratify in history, as many students know that when we are studying in the lecture, I am continuously repeating the statement that don't do the ratify in the history. You have to understand the aspects of the history. You can even question 1 or 2 or 3 times in the lecture while if you don't understand any topic. So understand it, and then you can easily remember the topic of a particular subject or a particular chapter. Okay. Next is a George William Friedrich Hegel. Next one is a George William Friedrich Hegel. इसको फेडरिच भी बोल सकते हो, फेडरिक भी बोल सकते हो. George William Friedrich Hegel. Hegel was a German philosopher. He insisted that the historical reality should be presented in the logical manner. So here Hegel was still that
Historical reality should be presented in a logical manner, and to him, the timeline of the historical event was indicative of the progress. He also thought that the presentation of history is bound to change over the time as एविडेंस वुड कम फोर्थ. यहाँ पे एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ट्राई की गई है. हेगल कहते हैं कि जो टाइम पीरियड है, जो टाइम लाइन है, जो टाइम पीरियड है जिसको हम पीरियोडिक बोलते हैं, पीरियोडिक स्टडी इन हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम एक्सटेंड होते गया वैसे वैसे डेवलप होते गए, अलग अलग चीज़ों में न्यू इन्वेंशंस आने लगी. सो वाइल राइटिंग द हिस्ट्री वी हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस टू द टाइम लाइन. यहाँ पे एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा हमें, वो है टाइम लाइन. सो अकॉर्डिंग टू हिम द टाइम लाइन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट वॉज एन इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस. He also thought that the presentation of history is bound to change over the time as a new evidence would come forth. इसका मतलब ये है कि अगर कोई नया एविडेंस मिल जाता है तो उसकी हिस्ट्री चेंज हो सकती है. कैसे? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ कि यहाँ पे अगर एक कोई पिक्चर है और उसमें अगर आपको ये ऐसे करके 4 पार्ट है, अगर आपको सिर्फ एक ट्रायंगल मिलता है, ये एक इतना सा हिस्सा मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं? द ऑब्जेक्ट कैन बी इन ट्रायंगल इन शेप. द ऑब्जेक्ट इज ट्रायंगल इन शेप. अगर वो ट्रायंगल मिलता है तो ये हम बोलते हैं कि ये जो है वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल. अगर एक और हिस्सा मिल जाता है, हमें एक और इक्विलैटरल मिल जाता है, तो हम क्या कहते हैं इसको? जैसे कि ये एक्यूट एंगल हो गया, है ना, एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. अगर एक और हिस्सा मिल जाता है तो हम कहते हैं, तब जाके हमें मालूम पड़ता है कि ये एक पूरा स्क्वायर में है. तो इसका मतलब कि जैसे जैसे एविडेंस मिलते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें चेंज होती जाएंगी. और हिस्ट्री इज़ नॉट एन स्टैटिक पार्ट, इट चेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पीरियड. सो ये एक इम्पॉर्टेंस स्टडी के अंदर देखा गया हेगल के. विद द हेगल्स फिलोसॉफी मैनी स्कॉलर्स वर conceived that historical methods were not of lesser quality, though they were differed from the scientific method. The collection of his lectures. अब यहाँ पे क्या चीज़ बात की गई है कि जो हेगल थे उनकी फिलोसॉफी में ये माना गया कि हिस्टोरिकल मेथड जो है वो लेसर क्वालिटी के नहीं है, दे वर डिफर फ्रॉम साइंटिफिक मेथड. तो मतलब उसको जो स्टडी करने के लिए हमें बेसिक मेथड भी नहीं लगेंगे और एकदम साइंटिफिक मेथड में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसा कहा गया. The collection of his lectures and the articles were published in a book which was entitled as an Encyclopedia of Philosophical Science. Underline the name of a book which was written by the Hegel. And in this book, his lecture was and the article were published, and which was known as Encyclopedia of Philosophical Science. His book Reason in History is also well known. तो हेगल ने 2 बुक लिखी गई है जिसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस और दूसरा बुक है उनका द रीजन इन हिस्ट्री. और नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज द लियोपोल्ड वोन रैंक. Leopold von Ranke, 1795 up to 1886. Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. Underline the word Leopold von Ranke, and he studied from the Berlin University. He spoke about the critical method of historical research. Underline again the word critical method and historical research. As we studied before, the René Descartes also gave importance to the critical study, and in the same way Leopold von Ranke also gave the importance to the critical study of the historical research. He put emphasis on the utmost importance of information gathered through the original document. This was an important in the writing of Leopold von Ranke. He gave importance to the original document. Now here understand what is a document. There were 2 types of document. One was a primary source, one was a secondary source. Primary source means which was directly written, originally written, and which wasn't copied. So original written were written by the kings, their mantris or different writers
of that particular period, but the copy, that is a secondary sources which was written by some other person while taking the reference of the particular source. So here Leopold von Ranke was told that we have to only rely on the original document, not on the secondary sources. We have to give importance to gather the information only through the original document. But there was a condition when the original document is unable to understand the writing, so we have to take the reference of secondary sources. But the Leopold von Ranke is only told that we have to only rely on the original document. तो यहाँ पे लियोपोल्ड वॉन रैंक जो है उनका कहना ये है कि जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हो, कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हो, तो हमें उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही देखने चाहिए, ना कि कोई सेकेंडरी सोर्स जिससे इन्फॉर्मेशन चेंज भी हो सकती है या फिर उसको अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है. सो हमें हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना चाहिए. He also stated that all types of document associated with the historical event need to be examined with greatest care. Greatest care मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस भी हो सकती है कभी कभार, या फिर एक एग्जांपल है कि हमें उस चीज़ को बराबर से उस चीज़ का अदर रेफरेंस भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कभी कभार हम अगर एक ही सोर्स से देखें और उसकी हिस्ट्री कभी कभार अलग भी हो सकती है. जैसे अगर एग्जाम्पल है महाराणा प्रताप और अकबर, महाराणा प्रताप और अकबर. अगर अकबर का हम CBSE बोर्ड का बुक देखें तो उसमें बताया गया है कि जो अकबर था वो कभी किसी से, मतलब जैसे एग्जांपल है अकबर नेवर लूज एनी वॉर इन विद द एनी किंग. बट अगर हम वही सेम चीज़ अगर हिस्ट्री भी देखें महाराणा प्रताप की और राजस्थान हिस्ट्री यानी राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स देखते हैं उसके अंदर देखते हैं कि महाराणा प्रताप नेवर लूज अ वॉर अगेंस्ट द अकबर. तो ये दोनों चीज़ डिफर हो जाता है. बट इसमें से दोनों चीज़ को इवेल्युएट करने के बाद ये बताया जाता है कि स्टार्टिंग के जो वॉर्स थे उसमें महाराणा प्रताप ने अकबर को बीट किया था और एट लास्ट तक वो अकबर से हारे नहीं थे. तो इसका मतलब क्या है कि हमें जब भी कोई सोर्स देखना चाहिए तो उस चीज़ को समझने के बाद, यानी जब हम उसको एग्जामिन करते हैं तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए विद द ग्रेटेस्ट केयर. इसका मतलब यही होता है. ठीक है. ही बिलीव दैट विद दिस मैथड इट वॉज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ. अगर हम इन दो चीज़ों का ध्यान रखें कि पहली ये चीज़ कि हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे ही ध्यान देना चाहिए, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट लेना नहीं चाहिए गैदर करने के लिए इन्फॉर्मेशन, और दूसरा जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहे हैं या फिर जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखना चाहिए ताकि हमें उस चीज़ की सच्चाई तक जा सके. सो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट जो लिखा गया, ही इट वॉजंट पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ. यही एक तरीका है जिससे हम हिस्टोरिकल ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं. ही क्रिटिसाइज द इमेजिनेटिव नैरेटिव ऑफ द हिस्ट्री. कलेक्शन ऑफ आर्टिकल इज पब्लिश्ड, underline the statement. Collection of his article is published in the two book entitled The Theory and the Practice of History and second one is The Secret of World History. So ये दो बुक थी जो लियोपोल्ड वॉन रैंक ने लिखी थी और इस बुक के अंदर उनके जो आर्टिकल्स थे जो पब्लिश हुए थे वो इन दोनों बुक के अंदर एम्बाइब्ड किए गए हैं. ठीक है. अब नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ कार्ल मार्क्स. Karl Marx, 1818 to 1883. In the later half of 19th century, a new school of thoughts arose, keeping in the view of the new thesis formulated by the Karl Marx. Karl Marx was a scholar of the 19th century. Before whatever we studied, he was a scholar of the 18th century. Now the Karl Marx was a scholar of 19th century. In the later half of 19th century, a new school were aroused which was formulated by the Karl Marx and that was known as a Marxist school. उनको मार्क्सिस्ट थॉट वाले बोलते थे क्योंकि उनको कार्ल मार्क्स की सोच से ज़्यादा प्रभावित माना गया था. अभी स्कूल क्या होता है ये हम जैसे जैसे आगे स्टडी करेंगे तो सेकंड चैप्टर के अंदर हम एक एक करके बराबर से स्टडी कर लेंगे. बट अभी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो कि जो जिस थॉट को मानता है उसी पर्टिकुलर स्कूल का हो जाता है. जैसे एग्जांपल है जो नेशनलिस्ट थॉट रखता है वो नेशनलिस्ट स्कूल का हो जाता है. जो ब्रिटिश के यानी ब्रिटिश की थॉट रखता है वो इम्पीरियलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी हो जाता है. जो कार्ल मार्क्स की थॉट रखता है उसको कार्ल मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं. According to the Karl Marx, history was not only about the abstract idea. Abstract मतलब क्या है, जो फिक्स है उसी आइडिया के बारे में नहीं है, जो कंटिन्यू बोलते आ रहे हैं, जो पहले से चलता आ रहा है, उन चीज़ों के बारे में नहीं है. बट इट वॉज ऑल्सो अबाउट द लिविंग पीपल. इट वॉज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. ये सिर्फ सोच का काम नहीं है. हिस्ट्री सिर्फ एक सोच नहीं है बल्कि उन लोगों के बारे में है जो पहले लाइफ जी के जा चुके हैं.
मीन्स इट इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन बींग एंड देयर पास्ट, जो ह्यूमन बींग पास्ट में चले गए, जो एक्टिविटी करके जा चुके, उनके बारे में। ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, बल्कि उन लिविंग पर्सन्स के बारे में जो पहले हो चुका है। Human relationships are shaped by the fundamental need of people and ownership as well as the nature of prevalent means of production to meet those needs। मतलब क्या है, हमें फंडामेंटल रिलेशन जो ह्यूमन बींग का, वो दो चीज़ों से पता चलता है। एक तो है नीड ऑफ द पीपल, ज़रूरत क्या थी उन पीपल, जो मनुष्य थे वहाँ पे, जो ह्यूमन बींग थे, उनकी ज़रूरतें क्या थी, और ओनरशिप किसके पास थी। जैसे एग्जांपल, अगर आज एक किराने की दुकान में बहुत सारा सामान रखा रहता है, लेकिन उसकी ओनरशिप किसके पास होती है, उस किराना स्टोर के ओनर के पास। लेकिन नीड ऑफ पीपल, जब पैसे होंगे उनके पास तो ही वो चीज़ को खरीद पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ को कनेक्ट करके उन्होंने हिस्ट्री को स्टडी करने की, यानी ह्यूमन रिलेशन को स्टडी करने की कोशिश की। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू द डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। अंडरलाइन द वर्ड स्ट्रेटा, अंडरलाइन द वर्ड स्ट्रेटा, एंड उसके ऊपर लिखो ग्रुप। स्ट्रेटा के ऊपर लिखो ग्रुप। The accessibility of this means to the different strata of society may not be equal। मतलब जो हमारे पास चीज़ें हैं वो बराबरी की नहीं है सबके पास। अगर जैसे एग्जांपल, अगर मेरे पास बुक है, आपके पास भी बुक है, लेकिन दोनों बुक की क्वालिटी अलग हो सकती है। अगर हमारे पास भी घर है, आपके पास भी घर है, तो वो घर की दोनों के एरियाज़ अलग हो सकते हैं, लोकेशंस अलग हो सकती है, कॉस्ट अलग हो सकती है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, वैल्यू अलग हो सकती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, जो जो चीज़ें लोगों के पास है, जो मीन्स है, मीन्स यानी जो ज़रूरत की चीज़ें, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती लोगों के पास। एंड दिस इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है, ये बहुत बड़ा कॉज है। ये जो इनइक्वालिटी है बहुत बड़ा कॉज है डिवीजन ऑफ द सोसाइटी के बीच में। एंड दिस लीड टू द क्लास स्ट्रगल। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, कि जब ज़रूरत की चीज़ें लोगों के पास बराबर नहीं होती तो उनके बीच में डिवाइड आ जाता है, बहुत बड़ा डिवीजन आ जाता है, और उसको क्लास में डिवाइड कर दिया गया। और यही क्लास आगे जाके क्लास स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब है कि वो परेशान जूझते हैं, और वो अलग अलग तरीके की हड़ताल या फिर स्ट्राइक करते या फिर दंगे करते, ये सारी चीज़ों का उनका जो जड़ है, यानी उनकी जो मेन नींव है, वो किस कारण है कि उनको जो रिसोर्सेस है वो बराबर नहीं मिले। और जब चीज़ें मिलती नहीं है तो उस चीज़ों को लोग कुछ चीज़ें करके उस चीज़ को लेना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आगे जाके क्लास स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाती है। सो कार्ल मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा मेजर कॉज जो है हमारे क्लास सोसाइटी के जो डिवीजन में, यानी कि जैसे वैश्यास, शूद्रास, फिर क्षत्रियास, ब्राह्मणास, जो सबसे बड़ी क्लास है वो ब्राह्मणास, उसके बाद क्षत्रियास, उसके बाद आते हैं वैश्यास, और उसके बाद आते हैं शूद्रास, यानी हम जो बोलते हैं ना ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी। तो ये सारा डिवीजन जो है वो इसकी वजह से आया हुआ है। सबसे मेजर रीज़न है इसके पीछे जो मीन्स होते हैं, यानी मीन्स बराबर होते तो ये डिवीजन होता ही नहीं। ये किसका कहना है, कार्ल मार्क्स का। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अंडरलाइन, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, human history is a history of class struggle, as the class that owns the means of production economically exploit the rest of the classes। अंडरलाइन, यहाँ पे कहा गया है कि जिस क्लास के पास ज़्यादा चीज़ें होंगी, यानी जो रिसोर्सेस है वो ज़्यादा होंगे, वो जिनके पास नहीं है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर जो रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं, बड़े बड़े फैमिलीज़ जो है, जैसे एग्जांपल टाटाज है, बिरलाज है, उसके बाद अंबानीज़ है, ये सब तो बड़े बड़ी क्लास के जो हमारे इंडिया के इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ है। अगर एक बात करूँ कि अंबानी जो वर्ल्ड में, एशिया में जो नंबर 1 पे आता है, एशिया पे टॉपेस्ट पर्सन पे आता है, तो इसका मतलब क्या है, उसके पास इकोनॉमिकली बहुत पावर है। वो गवर्नमेंट फंडिंग करता है, वो सोशल फंडिंग करता है, वो सीएसआर फंडिंग करता है, अलग अलग तरीके की फंडिंग करता है। अभी हमारे जो यहाँ पे वायरस एपिडेमिक चल रहा है, इसके अंदर भी उसने 500 करोड़, मतलब जो भी अमाउंट है वो पर्टिकुलर अमाउंट डोनेट किया। तो इसका मतलब क्या है, देवर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। सो वो हमें मतलब एक्सप्लॉइट नहीं करते। लेकिन अगर कार्ल मार्क्स का कहना ये है कि जिसके पास ज़्यादा चीज़ें आती है, जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, यानी इकोनॉमिकली मीन्स ज़्यादा होते हैं, वो दूसरी जो क्लास है, जो छोटी क्लास है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। Das Capital, underline the word Das Capital. Das Capital was a book written by Karl Marx. A treatise written by him is a most referred book all over the world। इसको बहुत से लोगों ने पूरे वर्ल्ड में इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी किया है, और जिस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। और ये स्टडीज़ आज की जो लोअर क्लास की जो सोसाइटीज़ है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, जो वो इन चीज़ को ज़्यादा मानते हैं, वो कार्ल मार्क्स की थियरी को ज़्यादा मानते हैं कि जो बड़े लोग थे, जो रिचेस्ट फैमिली थी, जो क्षत्रियास थे, जो ब्राह्मणास थे, या फिर जो अपर कास्ट के लोग थे, उन्होंने उस छोटी कास्ट को एक्सप्लॉइट किया। और इसी से कार्ल मार्क्स थियरी से ही
एक्सपीरियंस लेके या फिर इम्प्रेस होके आगे जाके एक नया स्कूल इमर्ज होता है, जिस स्कूल का नाम है, जैसे एग्जाम्पल है, उस स्कूल का नाम है सबाल्टन स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। वो सबाल्टन मतलब है लोअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, उनके जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपने हिसाब से अपनी हिस्ट्री को चेंज किया है। सो जब भी हम आगे जाके वो स्कूल को स्टडी करेंगे तो मैं आपको कार्ल मार्क्स का रेफरेंस दूंगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें। अब आगे जो है एनल स्कूल है, और यहाँ पे एक ये इट इज़ कुछ हेगल के बारे में जो चीज़ें हैं, सिंथेसिस की जो थियरी है वो स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका मिशेल फोकोल्ट और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, और इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।